Hi guys. Hi Shrishti. Hi Ankush. Hi Vishesh. Hi Siddhi. Hi, how are Hello. you? Hello. Hello. Hi. And who has joined us today? First of all, heartiest congratulations. I'm sure that you all have cleared, and I'm sure that you guys have cleared with excellent marks. So congratulations and a big clapping for you all. Thank you. Thank you. Hmm. Acha, so we have some participants, and guys, if you can just start your camera, this that will be great. It will be interactive, and the meeting is completely for you all students. So we'll take some time at the end and answer whatever question you all have. But in the meantime, as well, you can just switch on your cameras, and then it will be very interactive of a session. By the way, I see Rashi has joined us and she has secured All India rank 39. Oh, So wow. congratulations, Rashi. Congratulations. Congratulations. Rashi, how are you feeling? I haven't been able to talk to you. So how are you feeling? I'm feeling great, ma'am. Congratulations, congratulations. When are you Thank coming you. to Raipur and meeting us all? मैम सक्सेस पार्टी में आ रही हूँ फिलहाल तो बहुत अच्छी बात है, सीधा सक्सेस पार्टी लेगी ये हमसे। बहुत अच्छी बात है। सो जस्ट टू ब्रीफ एवरीबडी, ये हमने कॉल स्पेसिफिकली इसलिए रखा है बिकॉज वी हैव जब सी एंटर के रिजल्ट्स आए थे एंड वी मेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो दे वरंट क्लियर, दे हैडंट इवन स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ आर्टिकलशिप, लाइक रेज्यूमे नहीं बना था। हो सकता है यार, लोगों को एक एंजाइटी होती है कि पास होंगे नहीं होंगे जो भी है, बट रेज्यूमे नहीं बना था, सोचा नहीं था किसको अप्रोच करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल्स नहीं थी कुछ लोगों की, एंड इन जनरल दे डिडंट हैव अ क्लैरिटी कि अभी नेक्स्ट व्हाट। एवरीबॉडी नोज नेक्स्ट इज आर्टिकलशिप, बट हाउ टू अप्रोच दैट। तो वो एक क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली वो एक क्वेश्चन भी मुझे पोज नहीं हुआ था, मैंने लोगों से पूछा कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान एंड व्हाट इज द प्लान फॉर आर्टिकलशिप। तो दे वर नॉट वेरी क्लियर, एंड मैंने कुछ लोगों के रिज्यूमे भी बुलवाए जस्ट टू चेक देयर रिज्यूमेस, तो उनमें कुछ जो अपन छोटी मोटी गलतियों से, स्टार्टिंग, एवरीबडी रिमेम्बर्स देयर स्टार्ट, जब फर्स्ट रेज्यूमे बनता है तो वो 10,000 आइटरेशंस के बाद बनता है। तो एनीवेज वो तो होता ही है। तो people like us can guide them because we have been through that and we have been learning each and every day because we have been in the corporate world. Either it can be a big four, either it can be industrial training, either it is something of a mid-sized firm, whether it's in Mumbai or Raipur. So I just thought that let's take some time and guide them. That's why I requested you all, and thank you so much for that. We still have Ayushi to join, but she said that she'll join in about 5-10 minutes. She had some work in her office. So Raipur being Raipur, Saturdays are a working day. So so she'll join in some time. But you guys, please, if you can just unmute yourself and introduce yourself. I'll start with Shrishti. So, hello everyone. Congratulations to you all also for clearing your CA Inter. It probably is one of the most, the first time that you feel that you have achieved something. So, kudos to you all. I'm Shrishti Agrawal. I have recently qualified as a chartered accountant in November 24 exams, and I've cleared my intermediate exams in December 2021. Post which I pursued my articleship from Ernst& Young LLP in the Gurgaon location in the corporate tax domain. So corporate and international tax to be precise. And I'm still continuing my articleship only. My articleship will get over in a month or so. So I have completed my articleship from Ernst& Young LLP only, and about my articleship experience, I've worked completely solely for the corporate tax domain. I've served a few of bit of individual clients, and but the major chunk was companies, corporates, basically corporate taxation, and corporate taxation, that too income tax, direct tax. And my experience has been very very enriching when it comes to knowledge.
I have no complaints when it comes to pursuing an articleship from a Big Four. I'm here to break all the taboos and myths that you all must have, that Big Four में रह के पढ़ाई नहीं होती है, Big Four में रह के बहुत काम कराते हैं. I'm here to I'll be happy to take up all your questions, break all your myths, so that you have a clear idea of what it is like to work in a Big Four, and just that. And from here, after clearing, I would want to continue in a Big Four in this domain basically. So I have not yet saturated, but yes, I'll also highlight in the due course. I'll also highlight what mistakes I've done and what I regret I should have done, which I didn't. So maybe you guys can do that. Yeah. थैंक यू सो मच सृष्टि. आई थिंक ये तो सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का, बिफोर ज्वाइन करें कि नहीं करें. तो थैंक यू so much, and I think that you'll be a great help to these people. Anyways, Ayushi has also joined us. So Ayushi, thank you for joining us. We were just taking introductions. Nothing major has happened. Ankush, if you can unmute yourself and introduce yourself. हेलो एवरीवन. सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. फर्स्ट अटेम्प्ट या जितना भी अटेम्प्ट लगाओ, फाइनली सीए फाइनलिस्ट बन गए. अब 1 साल मजे करना है, ये दिमाग में बैठा लो. ठीक है, आर्टिकलशिप अगर ज्वाइन करेंगे वो सब तो बात की बात है. अभी 1 साल पढ़ना नहीं है, ज्यादा पढ़ना तो है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना है अपने को. ठीक है. बाकी hello everyone, this is Ankush Jain, recently qualified as a chartered accountant in November 2024 attempt. और मेरा आर्टिकलशिप रायपुर में ही आरबी दोषी एंड कंपनी से कंप्लीट हुआ. पूरे 3 साल मैंने वहीं काम किया था. मेरा मेन कोर एरिया था डायरेक्ट टैक्स में, जिसमें बेसिकली मैंने मतलब आईटीआर्स बहुत सारे फाइल किए, और मेजर पोर्शन था अपील का. फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, स्क्रूटनी असेसमेंट्स एक्सेट्रा. थैंक यू. थैंक यू सो मच अंकुश. आप भूल गए वैसे कि मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही पढ़ने बोल देती हूँ. बट नो, थैंक यू सो मच. एंड विशेष, योर टर्न प्लीज. Hello everyone. Myself Vishesh Mathani, and I am a CA finalist. I have gained my experience in Banshi Jain and Associates Mumbai, and specifically in the field of audit and taxation. I would like to congratulate you all, and I would say best of luck for your finals. Thank you. थैंक यू सो मच विशेष. सिद्धि, योर टर्न. Oh, yeah. Hi. Congratulations, everyone. Congratulations to the Excel team, to the teachers. I think great achievement for you all. So I am Siddhi Agrawal, and I do cleared from Excel in my intermediate from Excel in November 2022. I joined in the statutory audit department in EY in January of 2022, and I continued my articleship there for 1.5 years. Post that, I joined as an industrial trainee in Nomura in the Treasury Department in the regulatory reporting team. So so today from my experience, I think I'll be able to tell you all about why I thought that it was necessary for me to join industrial training. What are the pros? What are the cons? So yeah, we'll get to that in the later part. Thank you. Thank you so much, Siddhi. Thank you so much. And Ayushi. Hello everyone, congratulations. My name is Ayushi Goyal, and I cleared my CA final exams in November 24 attempt. And my articleship experience was in the first year of my articleship, I was in Grant Thornton, Mumbai in indirect tax domain, and then the remaining articleship I've completed in a Apasan company in Raipur. It was in audit and taxation. So Thank you so much, Ayushi. Sorry, I didn't introduce myself. I'm Muskan Agrawal, chartered accountant. I cleared in November 2020. I was a COVID impacted student. I secured All India rank in CA Inter and CA Final. Did my articleship from PwC Pune. Then I joined a
a MNC sort of a company as a business manager, as a business analyst, and then I was promoted to business manager there. My department was FP&A. It was a great experience, great experience. I always wanted to join a corporate, so that's why my decision was somewhere towards a big four. But these guys will tell you better of today's generation. And then I was working a lot in the MNC, so I thought that why not work for myself? And that's why I switched to Raipur and came back here and started teaching. Teaching has been a wonderful experience, though I know that I haven't taught any of you guys since it was CA Inter Jan attempt and I started with May attempt. But knowing somewhere or the students make some or the other mistakes, knowing about articleship, knowing about work experience, that's why I thought of doing this session with you all. So let me ask some question with these people. You guys hear it out, and if you have any doubt, you can raise you can just unmute yourself. I don't see all the people who might be raising their hands, so you can just unmute yourself and you can ask and let them finish, and then you can pose your questions. It's not an issue. So first that I'll start with, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कोशिश ये किया है कि हम हर जगह से लोग लाएं. So there is a person who has done complete articleship with a Big Four, Shrishti Agrawal, and she has joined a Big Four after she has completed her CA final. There is Ankush, who has completed his CA final but has done from a mid-sized firm in Raipur. So that is also an exposure you guys wanted, कि रायपुर से करें या बाहर जाकर करें. So then we have Vishesh, who has done his articleship from a mid-sized firm, a good mid-sized firm in Mumbai. So then there is a comparison between Raipur and Mumbai if you want to go ahead with a mid-size. There is Siddhi, who has done her articleship from a Big Four and now she is doing industrial training. So she got the opportunity to switch even though she is from a Big Four. And how is industrial training helping her? She'll be able to help you with that. And then there is Ayushi. Ayushi has the experience of a Big Five, which is a Grant Thornton. So somewhere between a mid-sized firm and a Big Four. So she has that experience. Plus, she also switched from Mumbai to Raipur. So you have the because some people don't want to completely leave Raipur but also get the exposure of outside world. So she would be the best example for you, who had done her articleship for 1.5 year in Grant Thornton, Mumbai, and then came back to Raipur. So how that decision impacted her, she'll be able to tell you best. I'm just a host. I'm just organizing this. Pose all the questions to them, not me. So we'll start with Shrishti, and here I think Siddhi can chime in and Ayushi can chime in that how Big Four helped them or a Big Five helped them, how the outside world exposure helped them. And जो वही again there are myths around Big Four कि Big Four में बहुत ज्यादा working hours होते हैं, बहुत ज्यादा challenges होते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं मिलता. So I think that they will be able to help. We'll start with Shrishti. What was her experience? What was her challenges with the Big Four? Okay, so starting with the initial 2, 3, 4 months that I switched into a Big Four. So first of all, you don't have to. So when you start, जब आप start करते हो, you feel like हमने अभी तक जो पढ़ा है वो कुछ काम का नहीं है. Everything is new to you. You feel like हमने अभी तक किया क्या है. So I'm already beforehand telling you all ये सबके साथ होता है. So initial 3, 4 months were a disaster. Every day I have cried. I want to come back. I don't want to continue. They make me work so much. They're toiling me. It happens. But Big Four, not easy. Okay, it is gonna be difficult, but it's not impossible. And the 3, 4, 5 months are not gonna be easy. Eventually, it gets better. You start enjoying the work. So for me, initially 3, 4 months were difficult. I had, I took time. I had a hard time gelling up with people, opening up, and especially you are very new and young. Okay, so you till now you have only connected with people who are who are of your age, with your peers. But when you step into a corporate, you feel like,
आई एम अ बच्चा हु हैज जस्ट हम इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आ गए हैं, एंड दैट हैपेंस. एंड स्पेशली व्हेन आई जॉइंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन, so it was very niche. So the floor had no interns, so it was difficult. It gets difficult. That's it doesn't get difficult, it gets better. So initially it was difficult, but then I started so इनिशियली 3-4 मंथ्स में आपको काम करने का इतना मन भी नहीं होता है, आपको समझ में भी नहीं आती है चीजें, सो यू गेट, आप पजल्ड अप ही रहते हो पूरे टाइम पे. बट इनिशियली धीरे धीरे समझ आने लगती है, चीजें बेटर हो जाती हैं. टूवर्ड्स फर्स्ट ईयर के एंड तक यूल फील कि ठीक है, चीजें थोड़ी बेटर हो रही हैं. सेकेंडली, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बिग फोर में आपको एकदम से क्रीम वर्क मिल जाएगा. वो नहीं मिलता है क्रीम वर्क. शुरू में आपको प्रिंट्स भी निकालने पड़ेंगे और आपको एक्सेल में क्लरिकल काम भी करना पड़ेगा. वो हर फील्ड में आई थिंक वो बिग फोर में आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि हम बेटर काम कर सकते हैं, एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू फेच बेटर वर्क फॉर योर सेल्फ ड्यूरिंग द आफ्टर फर्स्ट 4-5-6 months. Now, secondly, working hours. Working hours, yes, during seasons, peak times, जब deliverable due है तो होते हैं. But otherwise, it's chill also. It's not like कि तुम्हें 6 months in a stretch, 8 months in a stretch, you are made to sit for like 10 hours in the office. No, it doesn't happen. But yes, initially 3-4 months, 5 months में you feel like कि हमें इतना क्यों बैठा रहे हैं, इतना क्यों काम करा रहे हैं. मैं तो ऐसा बोलती थी कि मुझे अपने सीनियर्स के जैसा बनना ही नहीं है बड़े होके, क्योंकि दे यूज टू वर्क सो मच. बट इनिशियली यू गेट रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो. यू फील लाइक ये मेरा डिलीवरेबल है, मेरा क्लाइंट है, एंड यू स्टार्ट टेकिंग चार्ज. तो वो हो जाता है. नेक्स्टली, इफ हाउ टू मैनेज विथ स्टडीज कैसे मैनेज करनी है. वन, स्टार्ट फ्रॉम डे वन. जब आप डे वन से स्टार्ट करोगे तो इफेक्टिवली आप 4-5 months के बाद थोड़ा थोड़ा इफेक्टिवली करना चालू करोगे. बिकॉज इतना पढ़ के आने के बाद शुरू के 2-3 महीने तो नहीं होती पढ़ाई. इट्स जस्ट स्टार्ट सर्चिंग फॉर क्लासेस, किससे क्लासेस लेनी है, डेमो देखना चालू कर दो, समथिंग और द अदर, जस्ट स्टार्ट. So that, और पढ़ाई हो जाती है मैनेज. एंड स्पेशली विद द न्यू स्कीम इन wherein you all have to serve for just 2 years. I think that's a boon. You must, you should start studying from day one. But this 2 years, अब आपको लीव्स का टेंशन भी नहीं होगा. हमारे टाइम पे हमें ऐसा होता था कि हम अब लीव्स कम लें, हमारी लास्ट वाली लीव से कट जाएंगे. बट यू ऑल हैव लाइक, it's a cherry on top that you all have like 2 years हमें सिर्फ काम करना है और सिर्फ क्लासेस देखनी है और कुछ पढ़ना नहीं है. उसके बाद यू हैव लाइक फुल 6-8 months, 9 months जो आप टेंशन फ्री होके पढ़ के यू कैन go for your attempt. And also one thing that I would like to highlight, I did not do industrial because again, industrial, I don't know, Siddhi will be able to address this better. But industrial में I feel मेरे टाइम पे it was like leaves का थोड़ा issue होता है. Few of my friends जिन्होंने industrial की, they had to defer their attempt. No issues in that, go ahead. No issues in deferring your attempt, it gives you an edge. So after clearing, when I am applying for jobs, or so I am feeling this, that people जिन्होंने industrial की है, they get an edge. उनके ज़्यादा options खुले. So I lucked out कि मेरे को अपनी प्रोफाइल बहुत पसंद है, तो I don't mind continuing or working. I'm happily doing that. But for somebody who gets saturated 6 months or 8 months later or a year later, you must go for industrial. So that's it from my side for now. I'll be happy to take questions. Thank you so much. And just, sorry, a minute, Siddhi, and I think Siddhi, if you can chime in your experience of Big Four, and then Ayushi, your experience of Grant Thornton. So we'll have a ground of Big Four experiences. Yeah. So, as I mentioned, I was in EY. It's safe to say that I had a very different experience than Srishti did. And I think that is one of the reasons why I thought of joining industrial training. So I was in the statutory audit department, and well, what it is infamous for having extremely long hours, and it is considered to be very taxing, one of the most taxing departments in articleship. But also, I'd say that statutory audit is one of those departments where
somehow you get to apply all that you've learned in your internship, so in your intermediate, right? Start from the interview that they pose to you. They will ask you about essays. Of course, they'll throw in some questions about taxations and all, but they will ask you about essays. They will ask you some questions regarding to accounting. But all in all, it will a lot be about auditing. So yeah, auditing is one of the key areas in as a chartered accountant that people usually pursue, not necessarily from a big four, but yeah, they do. Coming to the working hours and like my initial experience, so at first, of course, I was extremely confused. I was the Shinchan in the lift with all the big people with briefcases. I had no idea. So I was skeptical to even send out an email before getting it reviewed from a senior. It's that difficult because you know that one email that you send out, you're going to be badged if it's wrong. So of course you're very skeptical at first, but after 1.5 years, it's extremely safe to say that I was sending out emails very professionally. If I was making a mistake, I knew how to apologize, and I know how to do it without letting me or my team down. So there's a lot of professionalism that you learn in a big four. Like it is unmatched. You get to talk to your peers who are your age, interns who are your age. You get to talk to your partner at times. You get to deliver to your partner. Of course, at a later stage, you get to talk to a CEO of a company. Shoulder to shoulder. If you're asking them for some data, you ask them shoulder to shoulder. There's no superiority or inferiority. So that's the respect you get as an auditor from a big four, especially in statutory audit. So that is something that I valued very much. That is where I felt that even as an intern, you're valued a lot. But then sometimes it also takes a toll on you personally, physically, mentally, because the working hours for me were extremely long. I've worked from 10 in the morning to 4, 10 in the morning to the next day 4 in the morning for like a month straight, and that was just 2 months into my internship. So I was extremely disturbed. I was trying to get through things, but then when you slowly talk to your manager, you understand how the culture is. You understand that this is only for the period where you have audit endings and like month LRs and year ends. You get free time, a little bit of free time after that. You start settling in, then you make friendships. I think that it makes it easy for you to bear over there. So, of course, work timings are difficult. I'm not going to lie. 90-80% of the time you will think twice कि okay आज भी काम पे जाना पड़ेगा, and it's not like कि class चलो ठीक है छुट्टी ले लेते हैं. It's not going to be like that. You have to go in. But it's okay. I think the way that your learning curve is going to be crazy. Like you will have an edge over your peers regarding the understanding of work. So you will be a part of a big team on a big client, and when and if you ask for a smaller client, you can work on it standalone. So it does not mean that you'll not get a holistic experience in a big four. If you ask for it, you will get it. But the point is that you have to be capable enough and confident enough to deliver a whole client by yourself. So again, opportunities will not come to you on a plate. You will have to ask for them, whether or not in a big four. But yeah, that was about big four. Towards the end, I was starting to feel that I was not getting much time to myself, even when I was sick, even when I had to study. So then I ultimately decided to think that, of course, audit has a lot to offer. Not to say that I gained it all, but I thought that I had saturated enough to transfer into industrial training, because I wanted to be on the other side of the desk. Just the FP&A team, they prepare the data and they give it to you, right? And we were here auditing the data that they had given to us. I wanted to be on the other side of the desk, understand where does data come from, how do you actually budget things. So people prepare MIS, so you understand a lot of budgeting. And FP&A is not the only department that you can join in industrial training. There's investment banking, there's private equity, there's treasury, there's regulatory reporting. So there's a lot that industry has to offer. Of course, you have to make your choices very carefully regarding
in context with what you have to do in the future after you become a CA. You have to think, you have to actively think about what you want to do. Only then you join industrial training. For example, if you want to continue in audit and or you want to continue in taxation, there's no point of joining industrial training, because you'll just be going with the flow. It's just under peer pressure. So that's not what something you should do. 1.5 years into any big four or any articleship experience that you might have had, you will somehow have your mind made up कि करना क्या है मुझे इसके बाद. सब लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है. So I thought that I had enough of audit and I don't want to continue this in the future. I will definitely want to join the industry, and that's why I joined industrial training. The work hours are slightly better, of course. There is more of an intern treatment over here rather than a full-time employee treatment that you get in articleship. But of course, your responsibilities, you have to be enough responsible here as well. So there is no running away from responsibility. It does not matter. Yeah, I get slightly more time to study. So one of my major reasons was that I did not get time to study in EY. It was really getting difficult. I hardly had time to sleep, let alone study. So yeah, that's why I decided to join industrial training. But I think Ayushi will be able to add more to it. Yeah. Thank you, Siddhi. So, guys, I totally agree with whatever Shrishti and Siddhi have said. The Big Four's experience or Big Five's experience, the top corporate firms, I think everyone should take that experience. Even though if you can take it for a shorter time, you should. The first thing is that the professionalism that you learn from there, you will not be able to learn that in a small firm or a mid-sized firm. And the confidence level, it will boost your confidence to the next level. I was not at all confident when I joined Grant Thornton, but gradually I learned it, and that professionalism, that corporate culture, that confidence level I have developed over there. It was amazing. And secondly, that is a myth कि आप बिग फोर्स में या ऐसे कॉर्पोरेट में आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा. You will definitely get it. आप कंपेयर कर लो, you'll get all the complete Saturday Sundays until and unless कुछ ड्यू डेट्स है, आपके पास सैटरडे संडे पूरा रहता है. प्लस you'll get शाम को टाइम आफ्टर द ऑफिस, द मॉर्निंग टाइम, whatever टाइम यू लाइक. तो ये तो नहीं है. अगर बस ये है कि आपको थोड़ा सा कोप अप करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा. अदरवाइज कोई सृष्टि हैज प्रूव्ड कि कोई 3 साल भी ईवाई जैसी कंपनी में होके भी वो एक बार में क्लियर कर सकता है. शी हैज क्लियर्ड इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. तो ईवाई में अगर है वो और कर रहा है, क्योंकि वी नो दैट ईवाई ज़्यादा वहाँ पे वर्क होता है. एंड आई ऑल्सो एग्री कि थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज भी फ़र्क पड़ता है. अगर ऑडिट में हो तो हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता. अगर सृष्टि ऑडिट में होती ना तो शायद उसको और थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई होती. लेकिन टैक्सेशन में रह के आप फिर भी कर सकते हो. यू कैन टेक आउट टाइम. आई वाज़ इन इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, तो आई वाज़ बिज़ी ऑन स्पेसिफिक डेट्स अपने जीएसटीआर 1 एंड 3B के टाइम्स पे कि हाँ, अभी ड्यू डेट्स है तब हम बिज़ी हैं. दिसंबर पे हम बिज़ी हैं. ओके, सो ऐसा हम बिजी रहते थे. तो यू कैन टेक आउट टाइम, आप पढ़ सकते हो आराम से. एंड इनिशियली जब स्टार्ट करो ना, तब तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी जब आर्टिकलशिप स्टार्ट करो तो पढ़ाई का बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, सोचना मत, क्योंकि यू विल बी इन अ न्यू एनवायरनमेंट. तो आपको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा. सो अगर आपके पास ऑप्शन है कि इफ यू कैन गो इन सम कॉर्पोरेट, तो मैं आपको 110% रिकमेंड करूंगी कि प्लीज गो, एक्सपीरियंस लो. इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट तब स्विच कर लो, दैट्स नॉट एन इशू. ओके. एंड मैंने स्विच किया है ना, तो मुझे कॉर्पोरेट के मेरिट्स एंड प्लस मिड साइज के मेरिट्स और दोनों के डीमेरिट्स रिस्पेक्टिवली, मैंने दोनों चीज़ें फेस की है. ये है कि थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा हो सकता है कॉर्पोरेट्स में स्टडी करने के लिए. एंड प्लस जब आप किसी अपने होम टाउन से बाहर होते हो तब चीज़ें बहुत अलग होती है. यू नो मतलब आपको ऐसा होगा ट्रेवल करना है, ये जाना है, वहाँ जाना है, घूमना है. दिस ऑल थिंग्स ऑल्सो टेक योर टाइम. सो लेकिन एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आई वुड रिकमेंड. और पहली चीज़ इस चीज़ के लिए भी आता है, आप लोग फील्ड के लिए भी बहुत कंफ्यूज्ड होगे, बट
ऐसा है ना कि काम कर करके ही आपको समझ आएगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको डे वन से नहीं पता होगा। इनफैक्ट आज मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि हाँ मुझे आगे अब किस फील्ड में जाना है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सारी फील्ड्स आप अपने आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इट्स अ शॉर्ट टाइम। आप इतने में आप ऑडिट भी देख लो, आप डायरेक्ट टैक्स भी देख लो, आप इनडायरेक्ट टैक्स भी देख लो, प्लस M&As और क्या क्या फील्ड्स नहीं होती है। तो आप अभी से नहीं सोच सकते कि आपको एकदम क्या पसंद है। जस्ट स्टार्ट विथ वॉट एवर यू आर गेटिंग इट। फिर नहीं होगा तो स्विच करने को कभी भी बहुत टफ चीज नहीं मानना चाहिए। एंड प्लस मिड साइज फर्म में आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा है कि नो यू हैव टू गो टू प्रैक्टिस, तब आपको मिड साइज फर्म कंसिडर करना चाहिए रेदर देन कॉर्पोरेट। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट में आपको एक फील्ड में आप रह जाओगे तो आपको सारी फील्ड्स की नॉलेज नहीं हो पाएगी। Thank you so much, Ayushi. So, just to sum it up from whatever I've understood from Shrishti, Siddhi, and Ayushi, for sure, Shrishti is completely in for Big Four. She has had a wonderful experience. And the good thing is that she's saying upright कि उसने starting में बहुत problems face किया है, but eventually the experience has been great. सेकेंड जो मैं भी पर्सनली बोलती हूँ कि जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको बिग फोर में मिलता है, आपको बिग फोर जैसा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहीं पर भी नहीं मिल सकता. सो दैट इज फॉर श्योर कि एक सीए में एक चीज होती है, थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट, एंड आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अपना छूट जाता है बिकॉज हम कॉलेज नहीं जाते हैं या वट एवर इट इज. तो बिग फोर डेफिनेटली हेल्प विद दैट. वो आपको बहुत प्रोफेशनल, बहुत कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देता है एंड यू फील यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन योर सेल्फ. तो वो तो 100% है ही है. वर्किंग आवर्स क्रेजी हो सकते हैं, बट फॉर अ स्टूडेंट हु कैन मेक टाइम, ही विल मेक टाइम. ही कैन मेक टाइम ऑन संडेज, ही कैन मेक टाइम when there are no deadlines, so that person will make time. और मुझे एक ये भी चीज समझिए कि बिग फोर से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शिफ्ट होना, या आयुषी शिफ्टेड फ्रॉम ग्रैंड थॉर्टन टू रायपुर, दैट्स नॉट अ दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू. क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज अ वेरी बिग इशू और आपको शिफ्ट नहीं करने मिलेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है. सो बिग फोर हैज देयर प्लसेस, बट ऑफ कोर्स you will take your time in adjusting, you will take your time with the workload, but you will feel like a professional corporate person. बट अगेन हर आर्टिकल बिग फोर नहीं जाता है. सो दैट इज देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स टू मिड साइज फर्म एज वेल, which that's what we have called in Ankush and Vishesh. Vishesh has done his articleship from a mid-sized firm in Mumbai, and Ankush has done it from Raipur. So we'll hear them out. I'll start with Vishesh. How was your experience with a mid-sized firm? तो अगर मैं सबकी बात सुनूं, लाइक सिद्धि मेरी ही बैच की थी एंड शी वाज द बोल्डेस्ट. ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा एक ऐसा ओपिनियन है कि सबको बिग फोर के लिए अप्लाई तो करना चाहिए. गिव एज मेनी इंटरव्यूज एज यू कैन. अब वो होना नहीं होना आपका अलग, आपके मार्क्स. बट ऐसा नहीं है कि आपको बिग फोर नहीं मिला तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, मतलब आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओ लाइफ से. नहीं, बिग फोर के अपने फायदे हैं. मतलब दैट्स लाइक अ टॉमी की ब्लैक शर्ट. मतलब उसको कुछ प्रमोट नहीं करना है आपको. नॉर्मल, आप सिर्फ नॉर्मल, कोई सुनेगा कि ही और शी इज फ्रॉम बिग फोर, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है. बट ऐसा नहीं है. इफ यू गो विद द बिग विद द मिड साइज, जैसे मैं गया था, लाइक मैंने भी बिग फोर के लिए अप्लाई किया. मैं आयुषी दीदी को रोज सुबह से रात तक कॉल करता था, प्लीज चेक माई रेज्यूमे, प्लीज चेक एवरीथिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे को बिग फोर बिग फोर बिग फोर. बट ठीक है, मेरा नहीं हुआ. मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ हार गया. इट्स लाइक कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला. लाइक मेरे लिए ऐसा कोई सीजन वाला नहीं था कि मेरे को 4 o'clock तक बैठना है. मैं आईटीआर में भी 4 o'clock तक बैठा हूँ, ऑडिट क्लोजिंग में भी 4 o'clock तक बैठा हूँ, और उसके अलावा मैं अपने जीएसटी वालों की भी थोड़ी बहुत हेल्प किया हूँ. लाइक द वन थिंग यू नीड टू सी बिफोर ज्वाइनिंग अ फर्म इज कि आपको वहां का क्लाइंट एक्सपोजर पता होना चाहिए कि वहां पे कैसे टाइप के क्लाइंट्स है, वहां पे आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा और कैसा वहां पे एनवायरनमेंट है. उसके बाद आपका, आपके बिग मिड साइज में ज्यादा चीज होती है, आप सीधा आपके पार्टनर से इंटरेक्ट कर सकते हो. लाइक इफ यू इंटरेक्ट विथ योर पार्टनर, आप उनकी थिंकिंग समझोगे कि 20 ईयर एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सोचता है, आपको वैसा सोचना है. आपको ऐसा एकदम ऐसे लूप 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 में जाने की जरूरत नहीं है. अगर यू यू हैव समथिंग, आप सीधा क्लाइंट से इंटरेक्ट भी कर रहे हो विथ योर मैनेजर्स, तो आपको कोई नया सीखने ही मिल रहा है.
और आपका कोई मेरे हिसाब से उसमें पर्टिकुलर सा पीक सीजन नहीं होता। लाइक आई हैव फाइल्ड अ लॉट ऑफ ITRs, आई हैव गॉन फॉर अ लॉट ऑफ ऑडिट। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। और बिग 4 बिग 5 के बाद भी और 5-10 टॉप फर्म्स है ऑल ओवर इंडिया, इसमें आप लोग को और ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा सब चीजें मिल सकती है। लाइक अगर मैं आपको पर्सनली मेरा बताऊं तो मैंने राधा कृष्णा दमानी जी का भी क्या बोलते हैं ITR देखा है। लाइक मिड साइज फर्म्स भी होती है जिनके पास एकदम टॉप क्लाइंट्स होते हैं। ऑल्दो अगर आपको कॉर्पोरेट में ही जाना है और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप 110% आप पहले बिग 4 लो ही। क्योंकि एट द एंड अगर किसी को कॉर्पोरेट करना है, कुछ करना है, तो एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। बट अगर आपको रायपुर में फर्म खोलनी है, आपको एकदम समझना है कि एक प्रैक्टिकल इंसान क्या सोचता है। आप समझ लो कि रिलायंस है, उसमें इतने बड़े बड़े इश्यूज नहीं होंगे। अगर आप रायपुर में हो तो आपके छोटे छोटे इश्यूज होंगे आपके क्लाइंट्स को। लाइक हाउ टू फाइल ITR, जैसे आपको थोड़ा सा टैक्स इधर उधर कैसे करना है, आपने क्या क्या जो जो इंटर में सीखा है, जो जो आपने चीजें वहां पे लगाई है, तो आपको सबसे अच्छी चीज है आर्टिकलशिप में आपको ये चीज पता चलेगा कि मैंने जो जो चीजें वहां पे सीखी है ना, अब वो मेरे को कहाँ यूज आ रही। तब तो ऐसा लगता था कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या रटा रहे हैं, क्या हो रहा है, बस ऐसा मन मन में आ गया, सुन लिया, हो गया। आर्टिकलशिप में कोई चीज समझ में आई कि अच्छा ये चीज यहाँ पे यूज होती थी, ये टैक्स का ये प्रोविजन संजय सर जो बोलते थे यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे होगा। तो वो चीज बहुत अच्छी है। आर्टिकलशिप डूइंग फ्रॉम रायपुर, डूइंग फ्रॉम मुंबई थोड़ा सा डिफर करता है मेरे हिसाब से। लाइक डूइंग फ्रॉम मुंबई वो ज्यादा अच्छी चीज इसलिए क्योंकि आप ज्यादा क्लाइंट एक्सपोजर में जाते हो, आप ज्यादा बड़े लेवल ऑफ शार्क्स से मिलते हो। लाइक इफ यू आर इन अ मिड साइज फर्म और आप ऑडिट कर रहे हो, तो आप वहाँ के CEO, CFO, ऑडिट डायरेक्टर, कंपनी के ओनर सबसे मिलोगे। भले आप एट द स्टार्ट आपको ये पता चलेगा कि ठीक है ये आर्टिकल है, बट अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस हो गया ना तो आपको ज्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी, आपको ज्यादा जल्दी चीजें मिलती जाएगी। एट द एंड मतलब मेरा स्टार्ट और एंड यही है कि अगर आपको बिग 4 नहीं भी मिलता है ना, इट्स ओके। आपने लाइफ में कुछ एकदम कुछ भारी लूज नहीं कर लिया। बस ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ आपको हर चीज के साथ अपनी पढ़ाई को साथ में रखते हुए मिड साइज में, अच्छी मिड साइज में जिसका क्लाइंट एक्सपोजर आपको पता हो उसमें जाना चाहिए। Great. Thank you so much. Thank you so much, Vishesh. Ankush, if you can add on to how midsize helped you and why did you, just adding one point to you, how did you choose between being in Raipur and going outside? बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं सीए इंटर पास हुआ बोथ ग्रुप, उसके बाद क्या क्या थॉट प्रोसेस थे हमारे, एक बार वो मैं एक बार डिटेल में अपना जर्नी आपको बता देता हूँ। आपको मतलब बहुत कुछ चीजें समझ आएंगी मिड साइज को लेकर के। तो जब मैंने सीए इंटर पास किया, मेरे भैया 1 साल पहले उन्होंने सीए इंटर पास कर चुका था, और हम दोनों का ही ये प्लान था कि इन फ्यूचर हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो एक बेसिक चीज तो ये था ही कि हमको कि रायपुर में ही रह करके जो बेसिक कल्चर चलता है अपने छत्तीसगढ़ में, वो हमको समझना था कि नॉर्मल जो पर्सन आ रहा है वो क्या सोचता है, क्या क्या कमी रहती है जो उनको बताने रहेगा, ये सब के लिए। तो हम दोनों ने ही मतलब मिड साइज फर्म चूज किया। मेरे भैया का प्लान पहले ही बन गया था कि उनको ऑडिट वगैरह में स्पेसिफिकेशन करना है। तो फिर जब मेरे ऊपर बात आई तो मेरे पास ऑप्शंस थे फाइनेंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने डायरेक्ट टैक्स चूज किया। और रायपुर में पता किए तो एक मेरे को मतलब रिनाउंड फर्म आरबी दोषी एंड कंपनी मैंने सुना था कि मतलब रायपुर में उनका बहुत अच्छा काम है। तो मैं वहां गया इंटरव्यू देने, और नेक्स्ट डे ही मैंने ज्वाइन कर लिया वहां। अब मिड साइज फर्म अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो जो बोलते हैं ना कि आपको चारों तरफ से हर चीज सीखने को मिलती है। आपका जीएसटी के डेट्स आते हैं, 11 तारीख के 20 तारीख के आपको जीएसटीआर फाइल करना है। रिटर्न के टाइम ऑडिटेड अनऑडिटेड रिटर्न्स फाइल करने हैं। एंड ऑडिट के टाइम आपको ऑडिटेड क्लाइंट्स लोगों से डील करना है। ठीक है। और बेसिक अकाउंटिंग तो चलते ही रहती है। तो ये सब का एक्सपोजर होना जरूरी है अगर आप एक सीए फर्म खोल रहे हैं। तो ये सब जो बेसिक नीड्स हैं वो तो आपको अपने क्लाइंट्स की पूरी करनी पड़ेगी। सेकंड क्या होता था कि मेरे पास डायरेक्ट कोई क्लाइंट आ जाता था कि सर मेरा मतलब
कुछ केस चल रहे हैं, वो कौन सी स्थिति में है, क्या चल रहा है, वो सब बताओ। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, लोगों को एक्चुअली लिटरली आइडिया नहीं रहता कि उनके नाम से नोटिस आ रहे हैं, उनके मेल वगैरह में आ रहे हैं, उनको ना मेल चलाना आता है ना कुछ आता है। तो वो उनको बैठा करके प्रॉपर समझाना, मतलब ये वाला एक्सपोजर हमको चाहिए ही चाहिए था। हम लोग मतलब कवर्धा से, एक स्मॉल सिटी है छत्तीसगढ़ में ही, तो उस टाइप का मतलब फ्लेवर आना चाहिए उस क्लाइंट्स का। तो इसलिए हमने मिड साइज चूज किया और रायपुर से चूज किया। बाकी मिड साइज में जैसा विशेष ने बताया कि आप डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल से मिलते हैं ना, जो वो मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। राइट। जैसे मेरे भी प्रिंसिपल जो थे, मतलब 40 to 45 ईयर्स प्रैक्टिस किए उन्होंने। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो मतलब सामने बैठा करके जो समझाते थे, जो बताते थे उन, और जो ड्राफ्टिंग स्किल्स मैंने उनसे सीखी है, वो मतलब बहुत मुश्किल है सीखना। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करते हैं। बाकी जो क्लाइंट्स वगैरह से डायरेक्टली अपन डील करते हैं, अब जैसे कोई भी कॉल आ रहा है ऑफिस में, मैं बोलता था आप मेरे को ट्रांसफर करो, मैं समझता हूँ क्या चाहिए क्लाइंट को, उस हिसाब से मैं जिससे बात करवाना होगा करवाऊंगा करके, नहीं समझ आएगा मैं अपने से डील कर लूंगा, अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो सीनियर को दूंगा। तो वो सब जो अपॉर्चुनिटी ने आपको, वो आपको खुद ग्रैब करना पड़ेगा। मिड साइज में ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में अपना एक्सपोजर कैसे ले सकते हो, तो वो बहुत मैटर किया मेरे को। एंड हाँ, हमारे टाइम में लीव को लेकर के देखा जाता था कि भैया यहाँ 6 महीने का लीव मिल रहा है, यहाँ 5 महीने का मिल रहा है, यहाँ 3.5 महीने का मिल रहा है, 3 महीने का मिल रहा है। तो वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता था। मेरे जैसे ऑफिस में 3.5 महीने का लीव मिलता था, जो कि मेरे को सफिशिएंट तो नहीं लगता। किसी भी मतलब सीए स्टूडेंट को, सीए फाइनल वालों को लीव जितना भी मिले सफिशिएंट नहीं लगता। बट एक बार रिस्क लेना था, रिस्क लिए, और उस 3.5 महीने में जितना मेहनत कर सकते थे, से संजय सर बोलते थे ना सीए इंटर में, कुत्ते टाइप पढ़ना है, कुत्ते टाइप पढ़े और निकल गए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकुर, थैंक यू सो मच। मुझे मिड साइज फर्म की कुछ बात समझ आई, विच इज कि आपको, अगेन ये आई थिंक सब वेरी रिनाउंड फैक्ट है दैट यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग। एंड मी, आई एम फ्रॉम अ बिग फोर, आई वाज इन ऑडिट, आई डोंट नो हाउ टू फाइल जीएसटीआर, I don't know how to file ITR. I got to know how to file ITR because I filed my ITR. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं, अगर मेरे से कोई आईटीआर के बारे में पूछ लेगा ना तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कभी उस वो नहीं करना पड़ा, प्लस एफपीए ने डिपार्टमेंट में चली गई, तो मुझे वो इट नेवर हैपेंड, विच आई रियली फील। आज तक मुझे आईटीआर का काम नहीं पड़ा है करने का किसी का, मैं अभी पढ़ाती हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ कैन आई नॉट नो इट। सो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। आप जब एक मिड साइज फॉर्म में जाते हो तो आपको 200% फुल एक्सपीरियंस होता है, बट एक एम्प्लॉय की कई बार कीमत की जाती है बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप बिग फोर में हो और आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज कर रहे हो, देन इट्स ग्रेट, इट्स नॉट लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। स्पेशलाइजेशन इज समथिंग पीपल go ahead in life because of specialization, so that's also that's that's where आपको फ्यूचर में क्या काम करना है कम्स इनटू द पिक्चर। मिड साइज फर्म से ये भी समझ आया कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये 4-5 बजे तक वाला कल्चर नहीं होता है कि आपको 4 बजे तक 5 बजे तक काम करा रहे हैं। हाँ, सैटरडे भी आपको रायपुर में कभी कभी, सैटरडे तो चलो रायपुर में वर्किंग ही है, बुला लेंगे सैटरडे में भी, बट ऐसा नहीं होगा कि आपके वर्क आवर्स इतने क्रेजी हैं दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट वर्किंग वर्किंग वर्किंग। एंड थर्डली, आप सबके साथ डील करते हो, आप अपने प्रिंसिपल के साथ भी उतने कनेक्टेड हो जितने आप अपने कलीग के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने मैनेजर के साथ भी बहुत कनेक्टेड हो, आप अपने, वो चीज बिग फोर में मेरे साथ भी होती थी, बट पार्टनर के साथ आई यूज टू मीट वंस इन अ मंथ, आई वाज वेरी मच कनेक्टेड विद माय मैनेजर एंड माय डायरेक्टर, बट पार्टनर के साथ आई यूज टू मीट एट द एंड ऑफ द ऑर्डर, जब डेडलाइन हो गया है, एंड देन वी कैन गो आउट फॉर अ डिनर, और वी आर डूइंग सम रिव्यू where the managers or the directors used to speak a lot. We weren't given that much of a chance. That's my experience. So ये mid size firm की of course कुछ qualities हैं. Coming to Raipur and Mumbai,
मुंबई का ऑफ कोर्स एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, एंड मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ. वी हैव ट्रिशी, शी इज डूइंग, शी हैज डन हर आर्टिकलशिप फ्रॉम दिल्ली. सो ऑफ कोर्स कहीं आउटसाइड का जाने का एक्सपीरियंस इसलिए ज्यादा, एक्सपोजर इसलिए ज्यादा है बिकॉज यू लर्न समथिंग्स ऑन योर ओन. कि आपको ऑटो से जाना है कि आपको बाइक मंगवा लेनी चाहिए, इतनी छोटी चीज भी आप सीखते हो. सो दैट इज ऑल्सो यू नीड टू लर्न इन योर लाइफ. बट रायपुर करने का एक्सपीरियंस, जो अंकुश ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि भाई हम कवर्धा के हैं, हमें पता है कि हमको रायपुर में फर्म सेटअप करना है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर वेयर वी वांट टू गो अहेड इन लाइफ. तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है. ऑफ कोर्स रायपुर और कहीं भी आउटसाइड एक्सपोजर की कुछ और फैक्टर्स है, लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यू शुड ऑलवेज डू दैट फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, इफ यू हैव टू सपोर्ट देम. दीज आर ऑल फैक्टर्स विच आर पर्सनल एंड विच शुड ऑल्सो हैपन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ आर्टिकलशिप. एक और पॉइंट पे मुझे जो बात करनी है वो है डमी आर्टिकलशिप. कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आर्टिकलशिप इज, हम डमी भी कर लिए तो दैट्स फाइन. सो मैं आई एम श्योर कि हाँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग खुल के बता सकते हैं दैट डमी आर्टिकलशिप इज नॉट एन ऑप्शन. बट लेट्स हियर आउट फ्रॉम सम ऑफ यू गाइस कि आपको क्या लगता है आर्टिकलशिप में आपका करियर मिड साइज हो या बिग फोर हो, हाउ डिड इट हेल्प यू विथ योर सीए? वी कैन स्टार्ट विथ विशेष. ओके, मेरे हिसाब से डमी आर्टिकलशिप तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए किसी के लिए भी. और डमी आर्टिकलशिप में सबसे पहली चीज ये होती है कि आप अपने आप को एक वो दे रहे हो कि हाँ भाई मैं बहुत आर्टिकलशिप कर लिया, अब मेरे को पढ़ना चाहिए. और जो इंसान ऐसे रोज 7-8 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकता, तुम अगर अपनी आर्टिकलशिप को ही छोड़ रहा है टू फॉर स्टडिंग और फॉर समथिंग ऐसा कि क्या बोलते हैं जिससे वो पूरा दिन उस चीज को टाइम देगा, तो आई डोंट थिंक कि इतने ज्यादा मतलब कंसिस्टेंसी हम में से किसी में वैसी है कि आप वो कर रहे हो. और उसके अलावा जो आपको एक फील्ड में आप घुस चुके हो, जो आपको उसका एक्सपीरियंस है, जो आप रोज जिसमें मेहनत कर रहे हो, अगर आपसे वो छूट गई ना, तो आपको वैसा पढ़ के भी, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद भी प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा नहीं वैसा. लाइक इफ यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, आपने फर्स्ट टाइम सब कर लिया लेकिन आप फील्ड में जीरो है, अगर आपको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ योर डमी आर्टिकलशिप, तो वो चीज क्या बोलते हैं आपको कभी बेनिफिट नहीं करेगी. आप किसी को ये नहीं समझा सकते कि हाँ मैंने फर्स्ट टाइम में पूरा आर्टिकलशिप किया है, मेरा क्लाइंट आया, मैंने उसको बोला कि मैंने सब फर्स्ट टाइम किया, मेरे ऑडिट में 80 आए थे, मेरे टैक्स में 75 आए थे. वो कोई नहीं सुनेगा. आप उनका काम कैसे कर रहे हो, आप उनसे डील कैसे कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. राइट. चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो मुंबई हो, कि चाहे वो मॉरिशियस हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, आपको आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. फिर वो बिग फोर हो कि मिड साइज हो. बस ये है कि आप बिग फोर करो, मिड साइज करो, रायपुर से करो कि कहीं से भी करो, ये होना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको टैक्टिक्स आनी चाहिए कि आपको कैसे उनको एक्सप्लेन करना है. और अगर आपके पास जो आपकी बुकिश नॉलेज है, जो आपको जहाँ पे यूज करना है, उसको आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकलशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि आर्टिकलशिप से आप एक चीज समझते हो कि आपको लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है, आपको आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है. अगर आपके पास एकदम नॉलेज एंड यू डोंट टॉक एकदम अच्छे से, एकदम ही मतलब ऐसे रफ एकदम रॉ टाइप बात कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक नो एनीबडी विल लिसन टू यू. इट्स जस्ट कि आपको आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, आपको चार लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, आपको कल्चर कैसे समझना है कि इंडस्ट्री कैसे रन करती है. फॉर दैट आई थिंक आर्टिकलशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I would like to add in a very very brief and concise answer. जब हम पढ़ते थे तो हमें संजय सर ही बोलते थे कि एग्ज़ाम देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सीए तुम आज से ही बन चुके हो जब से तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें सीए करनी है. सो एग्ज़ाम देना इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी. तुम सीए बन चुके हो एंड सीए बनने का मतलब इज़ to deliver your clients and stay updated and know, having that working knowledge, which only and only can articleship can provide. Even after qualifying, me, Ayushi, Ankush, we all keep discussing कि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कितना कुछ नहीं आता है. एंड जो प्रॉब्लम हमें शायद इंटरव्यूज के टाइम फेस भी करनी पड़ती है, अगर कोई हमें थोड़ा सा इधर उधर का कोई क्वेश्चन somebody throws at us, हमें नहीं आता है, ऑफ कोर्स यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिलीवर उतना ज्यादा,
बट टेलिंग कि 3 साल काम करके भी यू फील कि हमें और बहुत कुछ करना है, सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम काम ही ना करो और सिर्फ एग्जाम दे के आ जाओ कि अब मैंने एग्जाम दे दिया, अब मुझसे करवा लो, यू विल नॉट बी एबल टू सर्व. सो जस्ट दैट एग्जाम देना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. पढ़ाई करनी, नो डाउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बट इट कैन बी मैनेज्ड. सो आर्टिकलशिप फर्स्ट 2 years, अब तुम्हारे तो 2 ही साल है, तो 2 साल गिव इट योर ऑल, इतना काम कर लो. ऑल्सो एग्जाम्स देने के बाद तो तुम सीए बन जाते हो, तो तुम्हें वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं मिलता. जो मेरी रिजल्ट्स के एक दिन पहले तक मुझे इंटर्न वाला बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता था कि इंटर्न है, हो गई गलती, आफ्टर क्वालिफाइंग सीए बनने के बाद वो भी नहीं मिलता है. सो इफ यू एक्सपेक्ट कि तुम सीए बन के डायरेक्टली शो अप एट वर्क एंड एक्सपेक्ट कि तुम्हें तुमसे कुछ एक्सपेक्टेड ना हो, सो आई थिंक यू आर हाईली मिस्टेकन देयर. या. Thank you so much, guys. Thank you so much, Aishi. Yes, what were you saying? जस्ट प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली बहुत अलग होती है चीज़ें. इट इज़ ट्रू. हम जो भी प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप पे सीखते हैं ना, वो बुक्स में हम नहीं सीखते हैं. वी लर्न पेशेंस, वी हैव नॉलेज, भी हम काम कैसे करना है, ये क्या करना है, ये कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, एवरीथिंग वी लर्न. मतलब एंड आई हैव सीन अंकुश का भी, उसको सिर्फ 3.5 मंथ्स मिले थे फॉर स्टडिंग, बट स्टिल ही मैनेज टू क्लियर हिज एग्जाम्स. तो टाइम मिल जाता है पढ़ने का. हम ये सोचेंगे कि पढ़ने के चक्कर में हम आर्टिकलशिप नहीं करेंगे, तो दैट्स वेरी रॉन्ग. क्योंकि अभी आफ्टर बिकमिंग अ सीए आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स, एंड ये बहुत काम आता है कि आपने काम क्या किया है आर्टिकलशिप में. ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल, इनफैक्ट आज की डेट में तो दे डिमांड स्पेशलाइजेशन. मेरा 1 year एक्सपीरियंस ग्रैंड थॉर्डन में आईडीटी में था ना, तो अभी मुझे जितने भी जॉब के लिए रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वो मेजरली आईडीटी ग्रैंड थॉर्टन के नाम से, आईडीटी के नाम से आ रहे हैं. इवन तो मैंने बाद में ऑडिट ऑडिट में काम किया है, बट दे आर आस्किंग कि आपने 1 साल आईडीटी में किया है ना, तो वो मुझे रिकमेंड कर आईडीटी में करो. तो ये है कि आप जो ये मत सोचो कि आप स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मैं भी इनिशियली इसी थॉट में थी जब मैंने ग्रैंड थॉर्टन छोड़ा कि यार मैं सिर्फ आईडीटी ही सीखती रह जाऊंगी, मेरे को डायरेक्ट टैक्स और ऑडिट तो आएगा ही नहीं. जबकि ऑडिट इज अ बिग थिंग. सबको ऐसा रहता है ना कि नहीं, पहले आर्टिकलशिप ऑडिट से ही स्टार्ट करनी है, ऑडिट से ही स्टार्ट करनी है. जब हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तब मैं आईडीटी से बहुत डिससेटिस्फाइड थी कि नहीं यार, मेरे को इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों मिल रहा है, मुझे तो स्टैट ऑडिट चाहिए था. बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो आपकी जो 3 साल है ना, आप उसको पहले इनिशियली ये सोचो. ऑब्वियसली हर कोई क्लियर नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट थिंकिंग बाय दिस कि अगर आप एकदम क्लियर हो, जस्ट लाइक अंकुश, कि हाँ आपको आगे फर्म खोलनी है या आपको प्रैक्टिस करना है या वॉट एवर, तो आप एकदम क्लियर हो, तो प्लीज गो फॉर मिड साइज फर्म. आई वुड हाईली रिकमेंड, अंटिल एंड अनलेस आप कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस कुछ लेना चाहते हो कि हाँ यार आप कुछ महीने ले लो या 1 साल ले लो. अगर आप उस चीज के लिए क्लियर हो तो इट्स गुड. लेकिन अगर आप एकदम क्लियर हो कि आपको फर्म खोलना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको नॉलेज हर तरीके से होनी चाहिए. ठीक है. और उसमें भी अगर आप फर्म में भी कोई स्पेशलाइज नॉलेज लेना चाह रहे हो कि हाँ मैं सिर्फ टैक्स में ही काम करूँ, मैं सिर्फ ऑडिट में ही काम करूँ, दैट इज नॉट रॉन्ग. और इनिशियली ना आपको ये लगेगा कि यार मैं तो सीए बन रहा हूँ या सीए बन गया हूँ और अभी तक तो मेरे को ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता. तो ये भूल जाओ कि आपको पूरा काम आ पाएगा, क्योंकि सीए बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. तो आपको शेमफुल नहीं फील करना है, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि मेरे को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता. जस्ट लाइक मुस्कान दी सेड कि मेरे को तो अभी जीएसटी रिटर्न नहीं आता. ठीक है, क्योंकि सीए में बहुत चीजें हैं. अगर आप एक फील्ड में घुस जाओगे ना, तो वो भी कोई बुराई नहीं है. कि अगर आप एकदम क्लियर हो कि आपको कॉर्पोरेट में ही जाना है, तो प्लीज आप फिर स्टिक करो कि हाँ आप उसी में रहो. और प्लस मैंने जो किया, तो मुझे अभी अगर मैं जॉब्स के लिए देख रही हूँ ना कहीं ग्रैंड थॉर्टन का वो जो टैग है वो काम आता है. भले वो सिर्फ 1 साल का था, बट सच में वो वर्क कर रहा है. लोग मेरा रिज्यूमे देखते हैं तो उसमें ग्रैंड थॉर्टन हाईलाइट होता है. जबकि आई एम ऑनेस्टली गोइंग टू टेल यू, मैंने आपास में ज्यादा काम सीखा है देन ग्रैंड थॉर्टन. सो इट हैपेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, और यहाँ और वहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत अलग है. जैसे अंकुश को पता था कि उसको यहाँ पे फर्म खोलनी है, ही न्यू इट. सो उसने स्पेसिफिकली इधर के कल्चर में काम सीखा. अगर वो अभी कॉर्पोरेट में काम सीख रहा होता ना, तो यहाँ के वो क्लाइंट से बात ही नहीं कर पाता, डील ही नहीं कर पाता. सो वो भी अपन को डिसाइड करना चाहिए. और अगर डिसाइडेड नहीं भी है ना, तो प्लीज फ्लो में जो हो रहा है होने दो. कभी भी इस चीज का स्ट्रेस मत लेना कि नहीं मेरे को ये फील्ड नहीं मिल रही है, मेरे को क्या करना है आगे. वो 3 साल बाद भी डिसाइड हो जाएगा. और कभी इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर नेवर टू लेट, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो. Amazing, Ayushi. Very, very, very well put. I think कि कभी कभी some things are best not chosen, but yes, uh,
अगर आप यहीं पर काम करना चाहते हो, रायपुर में काम करना चाहते हो, या कभी ना कभी वापस रायपुर आना चाहते हो, सो इट्स अ ग्रेट प्लान कि आप मिड साइज फर्म ज्वाइन करो, बिकॉज एट द एंड अपास में इसने बहुत कुछ लर्न किया था। वेयर हर ग्रैंड थॉटन इज हेल्पिंग हर इज, जब वो रेज्यूमे भेज रही आगे और वो कॉर्पोरेट ज्वाइन करना चाहती है, दैट्स वेयर ग्रैंड थॉटन इज हेल्पिंग हर। एंड आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, यू शुड हैव अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड यू शुड गो फॉर अ बिग फोर और अ बिग फाइव। बट अगर आप सेट हो कि आपको प्रैक्टिस ही करनी है, रायपुर में करनी है, देन इट्स नो हार्म कि आप यहाँ क्लाइंटल बनाना शुरू कर दो, या आपको एक्सपोजर चाहिए तो बाहर जाकर मिड साइज फॉर्म ज्वाइन कर लो और वहां थोड़ा एक्सपोजर प्लस सारे फील्ड्स के बारे में समझ जाओ। What I want to ask next is, and then we'll shift towards the students, कि सृष्टि या आयुषी, और सृष्टि आयुषी है, सिद्धि has she'll join us in some time. आपने बिग फोर अप्रोच कैसे किया था? आई एम श्योर आपकी अभी तो लिंक्डइन प्रोफाइल है, बट आपने बिग फोर कैसे अप्रोच किया था? एंड देन वील गो अहेड विद विशेष अंकुश। अंकुश का मुझे पता है कि कहीं ना कहीं रायपुर में थोड़ा सा टिडबिट इजियर होता है फॉर्म देखना, बिकॉज देर आर लिमिटेड फॉर्म्स, बट विशेष के लिए हजारों मिड साइज फर्म्स है मुंबई में। सो हाउ डिड यू चूज द वन एंड हाउ डिड यू अप्रोच देम? सो वील गो अहेड विद सृष्टि एंड आयुषी फर्स्ट। Okay, so approaching, start making a LinkedIn, make a LinkedIn profile as soon as you can. Start cold emailing. I think आज जितना tiresome और irritating और frustrating होता है, but that is the only way you'll get through. One, nobody is expecting you to deliver something really great in your interviews. तो बिग फोर के इंटरव्यूज में और बाकी इंटरव्यूज तो आई डिडंट गो, बट बिग फोर के इंटरव्यूज में ऐसा कोई आपसे रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस दे डोंट आस्क. What they check is your confidence. So you have to be very, very confident, very, very presentable. About approaching, start cold emailing. Start using LinkedIn, surfing LinkedIn like you surf and scroll Instagram. So that's the only way out. Start approaching people, start messaging them. बहुत सारी openings आती हैं. स्टार्ट अप्लाइंग, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिवर्ट आएगा. ऑल्सो स्टार्ट अप्रोचिंग योर सीनियर्स जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, या somebody who you know there जो ऑलरेडी वहां काम करते हैं. So that is obviously a easier way out. Like I had somebody, an acquaintance who was already there in a big four, so I reached out to him, and then that eases away a little bit. बट अगेन इंटरव्यू सबको देना पड़ता है, वो रेफरेंस हो रेफरेंस ना हो. बट येस, रेफरेंस ना हो के भी देयर आर मेनी पीपल हु गेट देयर. सबके रेफरेंसेस नहीं हो सकते हैं. सो इट्स अ मिथ कि सिर्फ रेफरेंस से ही बिग फोर मिलता है, ऐसा नहीं होता है. स्टार्ट मेकिंग प्रिपेयर अ गुड रेज्यूमे. रेज्यूमे में also add in only those things that you're very confident of, because that sets the tone of your interview. And LinkedIn is the only way out, I think, which can help you fetch an articleship. And your acquaintances, after being in Raipur or working, after being a part of Excel, you might know a bunch of seniors now who have, who are working or who must have worked, and also other firms. Jitne bhi seniors hai, it's a whole community that you have. So you have to start networking, or be it as easy as, attending a few CA fests at Raipur or the Sikasa organization that helps you make connections. So you can do that. That also, helps a lot. वहाँ कब जाके कोई आपको मिल जाए who is working, who might help you with a reference, you never know. So to answer your question, start networking, for which the first step is LinkedIn, and then start reaching out to your connections. Yeah. Thank you very much. Yes, Ayushi. Yeah, Shrishti, whatever Shrishti said is I totally agree with. और सबसे पहले make a good resume. And since you're applying for articleship, तो आपको ऐसा भी नहीं कि you have to show your work experience, and you don't have any work experience for real. So don't worry कि नहीं मुझे मैं अपना resume कैसे भरूं. And secondly, there are many doubts कि resume कैसे बनाएं. Even I too had that doubt. I used to approach everyone, ये ठीक है, but please आप बनाओ अपने हिसाब से, आप रिसर्च करो, यूट्यूब में वीडियोस देखो, देयर आर मेनी गाइडेंस आपको मिल जाएंगे फ्रॉम टीचर्स कैसे बनाना है. एंड स्टार्ट अप्लाइंग थ्रू लिंक्डइन. अच्छी लिंक्डइन आईडी बनाओ. यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू naukri.com, आई गेस वहाँ पे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड रिज्यूम में कीप इट शॉर्ट, जस्ट कीप इट फॉर 1 page.
और जो भी लिखो रिज्यूम में ना, यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको उस रिज्यूम के एक एक वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो यू नो इट वेरी वेल। ऐसे कुछ भी फेंकना नहीं है, जो सच है वही लिखना, अदरवाइज आप इंटरव्यू में फंस जाओगे। सेकेंडली, मेरे हिसाब से तो आई थिंक दैट अगर कोई नेटवर्क मिलता है बिग फोर्स में, देन इट्स वेरी इजी रेदर देन आप जो वॉक इन ड्राइव्स या कुछ और होती है ना उसके थ्रू जाओ तो। क्योंकि अगर अगर कोई रेफरेंस मिल रहा है तो प्लीज गो थ्रू दैट। बिल्कुल, मतलब चारों तरफ से रेफरेंस निकालने की कोशिश करो, जो भी बिग फोर्स एंड ऑल है। एंड इंटरव्यू के लिए आपका वही प्रिपरेशन बहुत बेसिक होना चाहिए कि आपको बेसिक्स आए। लिटरली फॉर माय इंटरव्यू इन ग्रैंड थॉर्टन उन्होंने बेसिक ड्यू डेट्स पूछी कि 1 की 3B की ड्यू डेट्स क्या होती है, 2B क्या होता है, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो आप पढ़े हो। बस ये है कि आप जिस डोमेन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो ना उसके बारे में, उस जिस कंपनी के बारे में उसके बारे में जानो, उस डोमेन के बारे में जानो, उसके बेसिक्स कभी भी गलत मत बोलना। आप भले उनके कुछ क्वेश्चंस गलत बोल दो, दे डोंट जज यू। एंड प्लस ये बहुत लोग को मिथ होता है कि हमारे मार्क्स कम आए, मार्क्स नहीं देखते हैं वो लोग। आज तक के मेरे फाउंडेशन इंटर फाइनल किसी ने मार्क्स तक नहीं पूछे हैं। इट डज नॉट मैटर। हाँ, रैंक हो तो दैट्स डिफरेंट, रैंक इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। या तो आप रैंक करो या तो आप नॉन रैंक करो, nobody is concerned about your marks. So build a good resume, keep it short, keep it of 1 page, and then apply through linkedin and naukri.com। and make a good एक बना लो सेट मैसेज कि आप सबको करोगे नेम चेंज करके। एंड आप एक लिस्ट आउट कर लो कि हाँ मुझे ये कंपनीज में जाना है, और उस पर सर्च करो। आप मैनेजर्स आर्टिकल्स जो है सबसे कनेक्ट करो। जस्ट आपका दिन का ये काम होना चाहिए कि आप दिन में 100 लोगों से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो लोगों को, ताकि आप उनको मैसेज कर पाओ। एंड रेफरेंसेस, ऑब्वियसली रेफरेंसेस के थ्रू होगा। आई जस्ट विशेष यू कैन कंटिन्यू। ओके, मेरा तो क्वेश्चन ये था, मतलब मुस्कान दीदी का क्वेश्चन ये था कि मेरे को बंशी जन मिला कैसे। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कभी कोई मिड साइज का ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने क्या किया कि जैसे मैं तो सबसे पहले आयुषी दीदी को कॉल किया, जैसे कि आयुषी दीदी मेरा हो गया है, ठीक है इंटर, मेरे को जीटी जाना है, अब आप देख लो कैसे करना है। तो एक कि अब मैं तो जीटी छोड़ दिया, मेरे रेफरेंस से तो जा नहीं सकता। तो मैंने भी यही किया, मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया, आई मेड अ रेज्यूमे। मैंने 18 to 19 रेज्यूमे के कट्स बनाए हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका रेज्यूमे कैसा है, और ना आप मार्केटिंग वाले हो कि आपको आपका फोटो लगाना है, कलरफुल लेना है, 3 पेज का रेज्यूमे लेना है। जस्ट 1 क्रिस्प पेज रेज्यूमे, ब्लैक एंड व्हाइट, सिंपल। कि आप क्या हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो खुद से, आप क्या फर्म से एक्सपेक्ट करते हो, आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, आपको थोड़ा बहुत ये सब आता है। एकदम सिंपल होना चाहिए, आपके बारे में होना चाहिए, 12th से अभी तक की आपकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी ऐसा मत लिख देना कि मतलब मेरे को बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन हूँ, कुछ भी नहीं। जस्ट प्रोफेशनल, जस्ट क्रिस्प चीजें कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ, बस। ठीक है, फर्स्ट थिंग हो गई रेज्यूमे। सेकेंड चीज हो गई लिंक्डइन में, आप अपना लिंक्डइन और एक मेल आईडी। मेल में आप एक जैसे आयुषी दीदी ने बोला, एक मेल बना लो, उसमें नीचे आपका नाम लिख लो, बस आपको उसमें सबका नाम चेंज करके आपको हर फर्म में भेजते जाना। गिव एज मेनी इंटरव्यूज एज यू कैन। अगर आपको मिल जाता है ना कि मेरा ईवाई में हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आपका इंटरव्यू राउंड के पहले ना आप सारी मिड साइज फॉर्म में अप्लाई कर डालो अपना, और मिड साइज फॉर्म के ना 8-9 इंटरव्यू दे दो, आपको पता तो चलेगा कि कैसा आपको वहाँ पे होने वाला है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बिना प्रैक्टिस मैच खेले अगर आप फाइनल में जाके बैठ गए, तो मतलब वो तो सामने वो लोग का एक्सपीरियंस इतना है कि हमारे जैसे 5,000 6,000 कैंडिडेट तो ले रहे हो, जिन लोग ऐसे साइड इधर उधर करते हैं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आप जितनी मिड साइज फर्म में इंटरव्यू देते जा रहे हो, जितना, बस आपको उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना है, आपको अपना क्लाइंट तो बताएंगे नहीं, बस आपको ये पूछना है कि आपके कौन से इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है। लाइक किसी का हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज्यादा होता है, किसी का होटल्स, किसी का हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मेरी फर्म में हॉस्पिटल क्लाइंट एक भी नहीं था। मेरे को बस ये जानना था कि मेरी फर्म में क्लाइंट कौन से हैं। मर्जर वाले भी हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले भी हो सकते हैं, आईटीआर वाले भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बड़े छोटे सब हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात सुन लिया, मैंने समझ गया। मैं 2 फर्म के पास और इंटरव्यू देने गया, मेरे को वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। मैं अगर जब भी इन रायपुर के बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास 5 फर्म होनी चाहिए जिनको मैं बोलूँ कि मैं आपको विद इन 3 to 4 डेज में बता रहा हूँ। कि आप वहां जाके देख के आपको समझ में आए कि आप कहाँ पे उनके लोगों से जब बात करने जाओ, आप उस फर्म में गए, आप उनके लोगों से जब बात करने का, आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या क्वेश्चन है उनसे। आप 3-4 ऑप्शन आपके पास है कि आपको अगर ये नहीं हो तो बैकअप में ये है, इसका अच्छा है, इसका वो अच्छा है, तो आपको डिसाइड करने में अच्छा लगे। आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स, सबको कुछ ना कुछ पहले मिल जाता है।
उस फर्म में कोई ना कोई रेफरेंस, हर फर्म में आजकल ऐसा हो गया है, अगर आप एक्सेल्स हो तो आपका निकल ही जाता है, किसी के भैया, किसी का कुछ, किसी का कैसा। तो आपको बस वहां पे वही पूछना है कि यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मेरे को काम ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कम काम है, मेरे को नंबर ऑफ आवर्स कम है, अगर ऐसी फर्म में जाना है तो बिल्कुल पैसे बस वापस आ जाना, बिना बाय बोले ही वापस आ जाना। मेरे को चाहिए ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स, मेरे को बैठना है सीजन में 4-4 बजे तक। ऐसी फर्म ढूंढो। मैं भले ईवाई में नहीं हूँ, बट मैं सुबह 6-6 बजे फर्म से निकला हूँ, एक दिन पहले 9 बजे जाके, वो भी 3 मंथ्स। मैं 2 मंथ्स अपने दोस्तों से बात नहीं किया, क्योंकि मैं सुबह उठता था, जाता था, वापस आता था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है, इंटर में भी किया ना अपन ने बूथ ग्रुप निकालने के लिए। तुमने वो कर लिया तो तुमने भाई सब कर लिया। अगर 8 महीने में जो लोग 6 to 8 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, वो आर्टिकलशिप का प्रेशर तो ऐसे ही उठा सकते हैं, जबकि जिसमें तुमको लाइव घूमने भी मिल रहा है, जिसमें तुमको बॉम्बे एक्सप्लोर करने मिल रहा है, नए नए लोग भी मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसा अच्छा लगे, जो होता है, जो मतलब जो जो तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, बस ग्रैब करते जाओ, बात करते जाओ लोगों से। उसका देखो इंटरव्यू मिल रहा है ना, नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना उस फॉर्म में, तुम इतने केपेबल हो जाओ कि तुम रिजेक्ट कर दो कि मेरे को ये फॉर्म नहीं लेनी है, ये फॉर्म लेनी है। मैं सीधा आता हूँ, मैं बंशी जैन में क्यों गया, क्योंकि बंशी जैन की एक ब्रांच रायपुर में भी है, एक ब्रांच जोधपुर में भी है, एक ब्रांच बैंगलोर में भी है, एक ब्रांच मुंबई में भी है। तो भले वो बिग 5 नहीं है, लेकिन बॉम्बे के बिग 10 बिग 15 में उसका नाम आता है। लाइक इफ आई से कि मैं बंशीन एसोसिएट से हूँ, कोई ना कोई उसके ड्यू डिलिजेंस की वजह से, कोई उसके जीएसटी की वजह से, किसी ना किसी वजह से मेरे को समझ जाएगा। मैं अगर उसका क्लाइंट बेस बताऊंगा कि मैं ताज विवांता का भी ऑडिट में जा चुका हूँ, मैं रेडिसन की अलीबाग में भी जाके रुक चुका हूँ, मैं इस होटल में भी जा चुका हूँ, मैं राधा कृष्ण दमानी जी का भी कुछ ना कुछ कर चुका हूँ, मैं डी मार्ट भी जा चुका हूँ, मैंने स्टॉक ऑडिट भी किया है, मैंने बहुत सारे, अगर अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा तो मेरी बात सुनेगा कोई ना कोई। जैसे अभी आप पूछा, और प्लीज आप लोग सब एक बार कैमरा ऑन कर दो। हम लोग पूरे 1 घंटे 10 मिनट की मीटिंग में सब आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या हम लोग को समझ में आएगा कि हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? नहीं तो मुस्कान दीदी तो ऐसा है कि वो हम लोग को सिखा के भेज देगा अभी भी इंटरव्यू और सब के बारे में, वो हम लोग को एक दूसरे के लिए थोड़ी बुलाया है। तो Yeah, if you guys can please switch on your camera, it will be great because yeah, they have been तो speaking for. बस टेंशन किसी चीज की नहीं लेना, गो विद द फ्लो, स्टेप बाय स्टेप। इनसे पूछो, उनसे पूछो, इस फर्म के बारे में पूछो, उस फर्म के बारे में पूछो। अगर तुम फर्म में घुस भी गए, पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तुमको दिख रही है कोई और अपॉर्चुनिटी, ले लो। कुछ नहीं होता, फर्स्ट 6 मंथ्स तो तुम लोग को, मेरे ख्याल से सबको, हम लोग को अलाउ भी होता है तो शिफ्ट द फर्म। Correct. Correct. Thank you so much, Vishesh. Thank you so much. Yeah, Ankush, Raipur, I'm sure you have something to say. हाँ, मेरे को मतलब बेसिकली एक दो चीज रहता है, मतलब देखो, हम अभी इंटर में हैं, बेसिकली हमको समझ नहीं आता कि आर्टिकलशिप पीरियड में होता क्या क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बेटर है अगर आपके कोई रिलेटिव है जो मतलब इस आर्टिकलशिप में किए हुए हैं, तो एक बार जरूर उनसे गाइडेंस तो ले ही लेना कि कौन कौन सा फील्ड होता है, क्या क्या हम एक्सपोजर कर सकते हैं, कौन कौन सी फर्म अच्छी है किस काम के लिए। और जो भी जैसे फर्म में जाते हो ना, तो थोड़ा मतलब अपने को ऐसे दब के नहीं रहना है। वहां गए ना तो कोई भी चलते फिरते किसी भी आर्टिकल को पकड़ लिया, आपका नंबर दे दो ना। मेरे को मतलब कुछ कुछ चीजें जानना है फर्म के बारे में, क्योंकि इंटरनल जो है वो जो बंदा वहां काम किया है उसी को पता रहता है कि यहाँ के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। एक तो ये है, आप कहीं भी जाओ, भले कवर्धा में, रायपुर में, मुंबई, दिल्ली, जहां भी जाना है, एक मतलब ऑफिस में जा रहे हो ना आप, तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन के पकड़ लो। ठीक है। दूसरा, जैसा कि अगर जरूरी नहीं है आप मिड साइज में कर रहे हो तो प्रैक्टिस ही करो। ठीक है। मतलब मेरे पास भी ऑप्शन था, जैसे मैंने मिड साइज में किया, फिर मेरे पास लीव थोड़े मतलब ज्यादा बचे थे, मतलब सीए पास आउट हो गया था, तो मैं बोला एक बार हो के आते हैं मुंबई, देख के आते हैं कैंपस प्लेसमेंट। तो मैं गया था वहाँ कैंपस प्लेसमेंट में, और ईवाई में प्रॉपर मेरा इंटरव्यू हुआ, ऐसा जूम मीटिंग टाइप्स में ही हुआ। और वहां मतलब जैसा सृष्टि ने बोला, वहां आपके उतना ज्यादा नॉलेज ये सब नहीं देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। आप जिस फील्ड में काम किए हो उस चीज के बारे में पूछते हैं वहां।
जैसे मेरा डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छा एक्सपोजर था, तो मेरे पूरे क्वेश्चंस डायरेक्ट टैक्स के थे। अब वहां एक चीज, हाँ ये भी आता है, अगर आप जहां भी इंटरव्यू दे रहे हो आपको नहीं आता तो नहीं बोल दो, आप घुमाओ मत। I was just about to say that. यस, मेरे को जैसे पूछे कि फॉरेन रेमिटेंस वगैरह का क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो भी रायपुर वाला, मेरे को क्या पता फॉरेन रेमिटेंस। मेरे को जो सीए फाइनल में आइडिया था, हाँ 195 में टीडीएस कटता है उनका, जो भी पेमेंट जाता है, मैंने वो बोल दिया और बोला कि मेरा एक्सपोजर कुछ नहीं है फॉरेन में, आप देखो या ज्यादा कंपनी वाइज में घुसो तो। मेरा इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म्स इस टाइप के चीजों में अच्छे से एक्सपोजर है, तो वो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दो, उसमें आप झिझकना नहीं है अपने को कि अरे नहीं आता अब क्या। इंटरव्यूअर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा तुरंत ही सुन करके, ठीक है, तो वो अपने को झिझक नहीं लाना है, ठीक है। बाकी तो जो मैंने बताया कि अगर आपको जहां भी कुछ काम करना है एक बार उसके इनसाइट्स अगर आप लेने की ट्राई करो ही करो, नहीं तो आप वहां एंटर कर रहे हो, वहां ट्रांसफर देते हैं नहीं देते हैं, ये सब चीजें जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वहां नहीं देते ट्रांसफर तो आप 10 बार सोच के जाना, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत बहुत हो ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आपको फिर बियर करने पड़ेंगे। राइट। दैट्स इट। Thank you so much. Thank you so much. We'll take up now the time for the students. If any questions you have uh, for our panelists, आप लोग हाथ रेज कर लो so that I can see and I check and ask you. Any kind of questions that you have related to any field, related to any company, related to interview, related to city. मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोग क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि ये जो आर्टिकलशिप है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ, मतलब बेसिक जो बनता है ना अपना बेस इन सीए लाइफ, आपको जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है, और आप आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग के पास तो नहीं थे इतने ऑप्शंस, हमारे पास तो जो समझ आ रहा था, जो भैया बोल दिए वो हमारे लिए फाइनल था, ना हमको मतलब फॉर्म के बारे में ज्यादा पता चला ना कुछ चला। तो आप लोग के पास ऑप्शन जो भी माइंड में होगा, आपको मतलब रायपुर में करना है, बाहर जाना है, बिग फोर में अगर करना है तो रेफरेंसेस के लिए भी बैठे हैं, And these guys are your जो भी। seniors in Excel only, so you can ask anytime. इससे इंटरव्यू में कितना फर्क पड़ेगा? आर्ची ने आर्ची wanted to ask some question, but मेरे पास चैट में एक क्वेश्चन आया है कि इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। सॉरी, आई जस्ट 1 मिनट, आई एम सो सॉरी अंकुश। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पीडब्ल्यूसी पुणे से हूँ और मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे ज्यादा इंग्लिश आती है और मुझे मराठी नहीं आती है, सो दे तो स्पीक इन मराठी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ बैरियर, मतलब बी कंफर्टेबल विद वॉट एवर यू आर सीइंग। बल्कि हम कभी कभी इंग्लिश में गलत बोल देते हैं जबकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू स्पीक इन इंग्लिश। नन ऑफ द फर्म्स आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्पीक इन इंग्लिश इन इंडिया। You guys, if you guys are comfortable in Hindi, please, please, please speak that, and Ankush will add to that. मैं मतलब ये क्वेश्चन महसूस कर सकता हूँ, मेरा इंग्लिश बिल्कुल मतलब बहुत टाइट है मेरा हाथ इंग्लिश में, तो मेरे को अपनी वीकनेस पता थी ना कि मेरा इंग्लिश में हाथ टाइट है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर ऐसे पॉज लेकर के और जो भी क्वेश्चन आता था उसका प्रॉपर 1 या 2 सेंटेंस बस चुप, मैं एकदम, मैं जितना मेरे को रेलेवेंट लगता था, जितना मेरे को नॉलेज था, वही मैंने बस शेयर किया, ना कोई मैंने ग्रामेटिकल सोचा ये होगा ना वो सोचा, जो बस नॉलेज है वो मेरे को एक्सप्रेस करना है बस। तो इंग्लिश से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कॉन्फिडेंटली बस बोलो, आपका आराम से इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। Thank you so much, Ankush. Somebody has asked कि क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो if you Questions guys were want to basic. answer that.
बहुत बेसिक होंगे क्वेश्चंस इंटरव्यू के। आप ऑब्वियसली आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग कुछ प्रैक्टिकल ऐसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, जितना आपने पढ़ा है ना वही सब पूछेंगे। और आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर ग्रैंड थॉर्टन, तब गिविंग माय इंटरव्यू फॉर ग्रैंड थॉर्टन, तब भी दे आस्क्ड मी जस्ट बेसिक क्वेश्चंस, एकदम जीएसटी के बेसिक्स। कुछ आपको आरसीएम का पूछ लेंगे, कुछ बेसिक्स अबाउट रिटर्न्स के बारे में, ड्यू डेट्स, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस। तो उसकी स्ट्रेस मत लेना। प्लस आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लो, इसमें बहुत गाइडेंस मिल जाती है आपको। प्लस एचआर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। ये क्वेश्चंस, व्हाई डिड यू चूज दिस डोमेन, व्हाई डिड यू चूज दिस कंपनी, ये बेसिक क्वेश्चंस है जो हर कोई पूछेगा। तो इसका तो आपका स्पेसिफिक सेट लिखा हुआ आंसर होना चाहिए कि हाँ मैं ये बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ। एंड प्लस आर्टिकलशिप के लिए दिल आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चंस, और अगर नहीं आता हो तो क्लियरली बोलना कि नहीं आता है। I was on mute. Thank you so much, Ayushi. I'll just add on to it. आपको आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। आई एम टेलिंग इट टू यू राइट नाउ। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दो चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप डीटी वगैरह के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जनरली डीटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स वो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे स्लैब रेट्स वगैरह पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक। टीडीएस बट टीडीएस यस, टीडीएस वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आईडीटी में भी जैसे आयुषी ने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ सकते हैं, आरसीएम वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, बट समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, सो नथिंग दैट विल कम आउट ऑफ द ब्लू। मेरे में एक वनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर इट्स अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो पूछा था। आई डिडंट नो द आंसर एंड आई जस्ट क्लियरली सेड आई डोंट नो द आंसर, सो दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। सॉरी। इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू की बात करूं, सो आई जस्ट मेंशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक्सेट्रा, बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक व्हाट ऑल शुड बी प्रिपेयर has been answered। अगर आपको वो ऐड ऑन करना है तो प्लीज ऐड ऑन। जस्ट वन थॉट, कवर लेटर, मुझे किसी ने पूछा कि कवर लेटर जरूरी है क्या। आई वुड सजेस्ट, चैट जीपीटी आ गया है जिंदगी में, तो एक छोटा सा कवर लेटर बनाने में किसी को कुछ नहीं होगा। जस्ट मेक अ वेरी स्मॉल, आप अगर अपना रेज्यूमे भी अपलोड कर दोगे ना चैट जीपीटी में, इट विल टेल यू द करेक्शंस ऑल्सो, प्लस वो आपको ये बता देगा छोटा सा कवर लेटर क्या होना चाहिए अबाउट दैट कंपनी। जैसे आयुषी ने बोला, कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। आप पीडब्ल्यूसी में जा रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री, पीडब्ल्यूसी क्या करता है, किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ डील करता है, ये सब पता रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। उससे पहले किसी ने पूछा रिजल्ट से पहले अप्लाई करना चाहिए एग्जाम के जस्ट बाद, या रिजल्ट के बाद अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकलशिप के लिए। 100% रिजल्ट के बाद तो कर ही सकते हैं, वो तो कोई डाउट है ही नहीं। बट मैंने एग्जाम से पहले कर दिया था थ्रू माई रेफरेंसेज। माई वॉज अ प्री रिजल्ट interview and I had got the placement pre-result. That was something which I had done because I was sure I'll get an all India rank. तो वो मेरा कॉन्फिडेंस था जिसके कारण आई कुड डू दैट। बट 100% आप एक्चुअली तो रिजल्ट के बाद ही लोग करते हैं और रिजल्ट के बाद ही लोगों को आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट यू कैन ऑलवेज अप्लाई रिजल्ट से पहले। सृष्टि, अंकुश, विशेष, आयुषी, आप लोगों ने कब अप्लाई किया था, आर्टिकलशिप रिजल्ट के बाद या पहले? बाद में किया था मैंने रिजल्ट ओके, के। मैंने पहले शुरू कर दिया था, सो यू देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग शुरू पहले से। तो मैंने जितनी ओपनिंग्स आई थी, जो भी था, रिसर्च शुरू कर दी थी कि मुझे कि किस फील्ड में किस टाइप का काम होता है, एक्चुअली क्या काम होता है। तो वो मैंने पहले से शुरू कर दिया था, बट मुझे मिला बाद में था। एक्चुअली हाँ, करना ये चाहिए कि आप अपना रिज्यूम रेडी करके रख लो, कंपनीज ऐसे सॉर्ट आउट करके रख लो पहले से, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए यू कैन क्विकली स्टार्ट अप्लाइंग। Also, I would like to add one mistake that you all should not make is जब आप अगर किसी रेफरेंस के थ्रू रूट करवा रहे हो या कुछ कर रहे हो, be very mindful of who that reference is, at which level that reference is working in that organization. क्योंकि what happens is once your resume gets applied on the portal, the factor portal or the talent portal of any big four, it gets blocked for another 6 months. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने किसी पोर्टल पे, डेलॉयट के या EY के पोर्टल पे अप्लाई हो गया आपका रिज्यूमे, और फॉर सम रीजन
वो अप्लाई होने के बाद इट कुड नॉट गो फॉरवर्ड और इट डिड नॉट मैच विद द रिक्वायरमेंट्स, तो आप ब्लॉक हो जाते हो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो उस तरीके से आप पोर्टल के थ्रू नहीं अप्लाई कर सकते। सो बी वेरी माइंडफुल कि किसके थ्रू आप रेफरेंस करवा रहे हो। इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि somebody फ्रॉम द मैनेजर एंड अबव लेवल वो आपका रेफरेंस ले, क्योंकि उसके मतलब अगर मैं भी आज इंटर्न हूं तो आई डू नॉट हैव अ से इतना ज्यादा टू पुश योर रेज्यूमे और किसी और का रेज्यूमे फॉर दैट मैटर। सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल neither too high in the ladder, like not the partners, or obviously sometimes it gets easier, but it's always preferable कि तुम मैनेजर या somebody उस बैंड का ही कोई अप्लाई करवाए ऑन द पोर्टल। ओके, थैंक यू सो मच। आई हैव सम मोर क्वेश्चंस कि पहला है क्लाइंट बेसिस कैसे पता चलेगा। तो बिग फोर्स का तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा थ्रू इंटरनेट, बट कमिंग टू मिड साइज फर्म, आई थिंक विशेष आप जैसे बोल रहे थे कि क्लाइंट बेसिस चेक किया करो, सो वेयर वेयर कुड यू चेक सम ऑफ द क्लाइंट? जैसे अगर आपने कोई फर्म चूज की है, तो वहां पे अगर वहां पे आपको आर्टिकल, अगर आपकी जान पहचान का कोई सीनियर कुछ ऐसा मिल जाता है तो बहुत अच्छा। लेकिन आप जब इंटरव्यू के लिए कॉल करते हो या फिर आप उनसे बात करते हो कि इज देयर एनी वैकेंसी और समथिंग, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। या आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपको हमसे कोई क्वेश्चन है, एट दैट टाइम यू कैन आस्क कि कंपनी में क्या बोलते हैं सर, हम लोग कौन सी इंडस्ट्री में डील करते हैं, लाइक मेरे को कौन सा एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक वो आपको एज अ आर्टिकल देख रहे हैं, बट आपके लिए तो वो सब कुछ है ना, मतलब जो आप अभी 2 साल के लिए, तो आपको आपके जितनी क्वेरीज हैं आपको पूछ लेनी चाहिए। इफ बट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो मतलब आपको सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है और अगर आप इतनी सारी चीजें पूछ रहे हो तो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो आप उनसे पूछ सकते हो, आप वहाँ के आर्टिकल से पूछ सकते हो, वहाँ के एम्प्लॉय से पूछ सकते हो। ट्रू ट्रू ट्रू। एक्चुअली वो लोग जरूर बोलते हैं डू यू हैव एनी जरूर बोलते क्वेश्चन हैं फॉर अस, या। प्लीज उसके लिए भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, ऐसा नहीं कि हमने कैसा हाँ, किया। कोई अगर अच्छा क्वेश्चन तो सामने वाले लगेगा कि हाँ ये थोड़ा इंटरेक्टिव है बंदा, इसको कुछ है, इसको मतलब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो करेक्ट, दैट्स अ गुड पार्ट। तो यू हाँ, शुड। with respect to the Big Four clientele question that you asked कि Big Four के clientele, so as far as my knowledge मुझे नहीं पता चला था clientele। आपको बिफोर हैंड नहीं पता चल सकता। बिग फोर्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सेगमेंटेड होती हैं, तो वो इंडस्ट्री वाइज और वैसे ऑपरेट करती हैं, तो वो आपको नहीं पता हो सकता। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फील्ड ऑल्सो, आई वॉज टोल्ड कि ना तुमने टैक्स किया है, ना तुमने ऑडिट किया है, ना तुमने इनडायरेक्ट टैक्स किया है, तो यू आर इन नो पोजिशन टू से कि ये इसमें काम ज्यादा अच्छा होता है या इसमें काम अच्छा नहीं होता है। इट्स ओनली आफ्टर यू हैव टेस्टेड समथिंग यू कैन टेल हाउ वाज इट। सो वन क्लाइंटेल नहीं पता चल सकता। मुझे मुझसे पूछा गया था कि विथ व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स डू यू वांट टू सर्व, and I was so honest that I've said that I wanted to serve the fashion industry for taxation, but of course that was not the case। I'm serving some different industry जो मुझे नहीं पता था कि मैं पहले enjoy करूंगी। So it's very important to yes ask, but not to be very rigid। I think at this stage you all should be as flexible as you can, whatever location, whatever company, whatever domain, just grab it if you're getting it, not to be too rigid कि हमें यही clientele serve करना है या ये industry serve करनी है। You have no idea of where that industry is gonna go 10 years down the line or 20 years down the line। या थैंक यू सो एडिंग टू मच। सृष्टि, मेरे को एक बात बोलनी थी कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा आपको क्लाइंट पूछना, आपको इंडस्ट्री पूछनी है, क्योंकि क्योंकि बिग फोर का ये होता है कि सबको पता होता है इनके पास सब कुछ है, मतलब वो इतने केपेबल है। बट मिड साइज को हम लोग को अगर एक्सपीरियंस करना है कि उनके पास काम है नहीं है, कैसा काम है क्या, तो आपको बस ये पूछना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हो। लाइक देयर आर सम मिड साइज फर्म्स की वो उस इंडस्ट्री में देखते ही नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं अगर आपने कोई इंडस्ट्री पूछी तो आपको उसी इंडस्ट्री में भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो वो अपने हिसाब से। बट आपको पता होता है कि इस फर्म में अगर ये इतना सारा काम है, ये तो मैं इधर जा सकता हूँ। मेरा बस एक ही है, आप जो भी फर्म चूज करो बस ऐसा लेना उसमें काम बहुत ज्यादा हो। मतलब सब लोगों के लिए होता है फाइनेंशियल क्राइटेरिया ये हो, बट इफ यू आर वेल केपेबल इनफ, आपको काम सीखना है। जैसे आपने इंटर में सीखा ना, वैसे आपको इधर काम सीखना है। मतलब आपको 4 बजे तक बैठा रहे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीना कोई नहीं पढ़ता। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको वहां जाके कंफर्टेबल होना है, आपको खुद के लिए चीजें ढूंढनी है, आपको आसपास वाले बनाना है ताकि आप वहां पे सेटल हो जाओ। उसके बाद सब होता है। मिड साइज हो, बिग फोर हो, स्मॉल फर्म हो, रायपुर हो, मुंबई हो,
कुछ पीरियड में ही बहुत ज्यादा काम होता है और कुछ पीरियड नॉर्मल सेटल लाइफ चलती है, उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। Thank you. I think I agree with both of them. Sometimes you don't know the client, sometimes they would not let you know their clients, which is fine. You can go ahead and understand their industries. Big Four में तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहता ही है कि इनका क्लाइंट बेस अच्छा होगा, और बिग फोर में भी मुंबई का ज्यादा क्लाइंट बेस अच्छा होगा, दिल्ली का ज्यादा अच्छा होगा, पीडब्ल्यूसी का में भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्वेश्चन है, वो टेकअप कर लेती हूँ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या, देखो यार, बिग फोर अगर आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देता है ना, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको लिटरली इस चीज का एक्सपीरियंस दे देता है कि कॉर्पोरेट में काम कैसे होता है। बिग फोर आपको ऑडिटिंग, डीटी, आईडीटी की प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देता है, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है कि सपोज आप अकाउंट्स में जाते हो, फाइनेंस में जाते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में जाते हो, किसी कंपनी के एफएमसीजी ज्वाइन करते हो, कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन करते हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है, और यू गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको फिर बिग फोर के साथ ही कंटिन्यू करना है या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाना है, लाइक एनी एफएमसीजी, एमएनसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा। कब स्विच करना चाहिए, तो आई थिंक लास्ट 1 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को देना चाहिए, सो यू कैन फिगर आउट कि कब आपको स्विच करना है। लास्ट 1 ईयर जनरली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को देना चाहिए। जिनको अपना बिजनेस करना है या अपनी फर्म खोलनी है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पैनलिस्ट कहते हैं बिग फोर इज अ, मतलब बिग फोर जरूर ज्वाइन करें, 100% everybody will say that Big Four has a great work ex, but you have to make, you have to choose for yourself कि भाई आपको बिग फोर, देखो यार, मैंने बिग फोर से किया है, मैं भी बिग फोर रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं एजुकेशन में हूँ, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, बट हाउ इट हेल्प मी इज मेरा प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, आई स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली विद पीपल, दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैड बिफोर एज वेल, लेकिन आई थिंक इट एनहांस्ड माई एक्सपीरियंस। मेरे को टीम वर्क बहुत अच्छे से आता है, मुझे एक लोगों के साथ डील करना अच्छे से आता है। अगेन, यू लर्न दैट इन अ मिड साइज फॉर्म एज वेल, बट मिड साइज फॉर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी कैजुअल बिहेवियर भी होता है, कभी ना कभी थोड़ा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, तो वो चीजें हैं। आप शेप कैसे हो गए अपने लाइफ में, दैट इज समवेयर वेयर अ बिग फोर और मिड साइज विल हेल्प यू। मिड साइज आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है, कहीं ना कहीं आपको बिग फोर कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन सिखाता है। आपका जो क्लाइंटेल बिग फोर से बनेगा वो है बिग फोर का क्लाइंट, वो आपका क्लाइंट नहीं है, वो आपके नेटवर्किंग आप कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा शायद आपको हेल्प ना करे। मिड साइज फर्म की नेटवर्किंग आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, स्पेसिफिकली इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम रायपुर। सो नाउ दैट स्टेप यू हैव टू टेक कि व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ। यार आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लो, बिकॉज मैं चैट में कुछ क्वेश्चंस मिस कर जा रही हूँ। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एज अ डोमेन इज ऑल अबाउट? I think I can take up this Yeah, question. please. So, I have worked very closely with this financial due diligence team. So, what happens, financial due diligence, or it is also called strategy and transactions. So, what happens is when a company or any business organization ventures into acquiring some other company, तो आपको चेक करना होता है कि जो कंपनी आप अक्वायर कर रहे हो, हेल्थ चेक बोलते हैं हम उसे। और जब भी हम कोई लैंड खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं, वी चेक राइट कि वो कैसा है। सो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज नथिंग बट हम उस कंपनी के, वी गो बियॉन्ड ऑडिट, अ स्टेप अहेड ऑडिट, एंड वी चेक कि एक्चुअली कंपनी कैसे फंक्शन करती है, उसके केपीआईज क्या हैं, व्हाट आर इट्स प्रोजेक्शंस। So you can say it is a kind of advanced auditing. We go beyond auditing. Audit में हम caveats और disclaimers देके we save ourselves, but FDD में you try to present a clearer picture of what the organization is actually all about. From at your level, I would say it is a very promising profile. Go for it. If you want to, it's going to open a lot of doors for you for investment banking, private equity, if and finance, if that is what you are venturing into. It's a step ahead of audit. Thank you so much, Trishti. Guys, if you have any question, you can just directly text. You can just directly pose the question, unmute yourself and pose the question, because I've lost track of the questions now. I have a question for Ayushi Di.
Yes. So you worked in indirect tax domain in GP. So like what kind of work were you exposed to? I already messaged you, but it was mostly Okay. the compliances and a bit of litigations because I was there for just 1 year. If I would have done it there further, I would have completed all the litigation things as well. And you get to know about the updates, you prepare updates and tax clearance memorandums, and mostly the compliances. Anything else? No, thank you. Guys, if you have any question, please, you can just unmute and ask. If you have question for any specific person here, then let me check with them and I can share their number with you for sure. If they are okay with it, I'll share their number with you and you can pose specific question with them. And I'll just wait another minute if you have any question. Anyhow, even if you don't right now, I myself am always in Excel, ready to answer any of your questions. Seriously, I'm ready to check your resume. I have checked Samir's, I have checked Swayam's resume because they used to come for the interview and everything. So I'm there. You can contact me anytime. I'll check with them. I'll share their number. If they are comfortable, they'll entertain your questions. And thank you so much. Thank you so much, panelists, for taking this time. I mean, this session was wonderful, even for me, to be very honest. So I'm sure it was for them. Thank you so much for taking out this time. And if you have any last words, and then we'll end the session. Yeah, Vishesh. So, मुस्कान दीदी आप एक बार मेरा नंबर दे देना एंड आई विल शेयर यू अ लिंक टू अ ग्रुप. आप वो सारे स्टूडेंट्स को भेज देना. उसमें क्या है, देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड 900 सीए आर्टिकल स्टूडेंट्स और अक्रॉस अक्रॉस इंडिया. तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल शिप वैकेंसी या कोई इंटरव्यू के लिए अगर वो सब डालते हैं ना, तो दे कैन बी अपडेटेड फ्रॉम दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनको कोई भी पर्सनल क्वेरी है कि रिगार्डिंग कि अब मुंबई में कैसे क्या करना है, अगर मैं मुंबई ले रहा हूँ, अगर मैं वहां जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, रायपुर ले रहा हूँ, कोई भी मेट्रो सिटी ले रहा हूँ, कुछ भी अगर पर्सनल क्वेरी है जो यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे, मैं पर्सनली उनको आंसर कर दूंगा. बस आस्क देम टू ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई विल रिप्लाई देम. Thank you so much, Vishesh. I think this would be a huge help. I'm sharing the number right now itself because या रिगार्डिंग मिड साइज ऑल्सो, रिगार्डिंग कैसे इंटरव्यू के लिए प्लान करना है, कैसे वहां पे वो होता है, कैसे मुंबई में लोग रहते हैं, कैसे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं होते, एनीथिंग. thank you so much, Vishesh. This would be supremely helpful for our students. ओके, Yes. थैंक यू. Thank you. Guys, I'll check with Ankush and Shrishti also, and I'll share their numbers. Ayushi, Vishesh, thank you so much for sharing your number. And you can contact them. You can contact me. Thank you so much, guys. Shrishti, Ankush, Ayushi, Vishesh, and Siddhi, who is not here right now, but thank you so much. Bye, guys, for this wonderful session. Thank you so much. All the best, everyone. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Ankush has shared his number. Thank you. Bye bye. Thank you. All the best.